Plisturabá, Stuper, Stuper Blanc, Reprisals. Taka 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 naka taka taka naka taka taka naka dak taka taka nak. We are for the subject information security. In last lecture, we have seen what is security, which are the different fields where security is required. We have seen the types like computer security, home security, health security, ecological, cloud, corporate, national. So security is a term which needs in every sector, in every department, as it is part of our life. Then we have seen privacy. कि privacy क्या होता है? So privacy is not of being disturbed by someone and not being observed by someone. Whatever task I am doing, whatever I am doing, it should not be observed and it should not be disturbed by someone is nothing but the privacy. जैसे हम मनी लॉन्ड्रिंग का ये होता है, क्राइम होता है या कोई साइबर क्राइम्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो प्राइवेसी होती है ऑफ द पीपल इज बीइंग डिस्टर्ब्ड समवेयर एंड ड्यू टू विच द क्राइम्स आर हैपनिंग. So that confidentiality is nothing but the privacy. Then we have seen the interrelation between security and privacy. आपके पास सिक्योरिटी है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डेटा प्राइवेट है, आपके पास प्राइवेसी है. They both are interrelated, but security can be achieved without privacy, but privacy cannot be achieved without security. तो सिक्योरिटी आपके पास है, सिक्योरिटी कैन बी अचीव्ड विदाउट प्राइवेसी. प्राइवेसी नहीं है आपके पास, फिर भी आप सिक्योरिटी दे सकते हो. You can take example of this image. Okay, in this image you are able to see a glass house. अभी ये ग्लास हाउस में एंटर करने के लिए आई शुड गो थ्रू दिस डोर, द वाइट डोर. अगर यहाँ पे इस एंट्रेंस पे मैंने लॉक लगा दिया कि द पर्सन हु इज हैविंग की ओनली शुड गेट इनसाइड द हाउस, तो ये मेरी सिक्योरिटी होगी. ठीक है, ये जो पूरा हाउस है इसके गेट पे मैंने लॉक लगा दिया तो मैंने सिक्योरिटी दे दी वो हाउस को. बट डू आई हैव प्राइवेसी इन दिस हाउस? ये हाउस में मेरे पास प्राइवेसी है क्या? No है. Why no? Why no? मैं वहाँ पे कोई लॉक वगैरह नहीं. प्राइवेसी क्यों नहीं है मेरे पास? देखो कि ये पूरा हाउस ग्लास का है, यहाँ पे मैंने कितने भी लॉक लगाए, कुछ भी किया तो वट एवर आई एम डूइंग इनसाइड विल बी विजिबल टू एनीवन हु इज देयर आउटसाइड. तो प्राइवेसी है क्या मेरे पास? नहीं. Someone who is there outside can disturb me. Someone there who is outside can observe my activities, what I am doing in my house. So I am not getting privacy. But जो कि मैंने लॉक लगा दिया है तो मेरे पास सिक्योरिटी है. तो दिस इज हाउ दे आर को रिलेटेड विद ईच अदर. आप सिक्योरिटी आपके पास हो सकती है बट प्राइवेसी होगी ही ऐसा नहीं है. Security can be achieved without privacy too, but privacy cannot be achieved without security. ठीक है, यहाँ पे मैंने लॉक लगा दिया. I can do one more thing to get my privacy. I can attach the curtains. I can paste some paper over these glasses to get my privacy. So this is how the security and privacy are two interrelated things. They are interrelated. They are not one and the same thing. अभी आपको सिक्योरिटी और प्राइवेसी में का डिफरेंस समझ में आ रहा है? सिक्योरिटी मतलब
आपने सिक्योरिटी दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्राइवेसी भी वो इंटीग्रेट करेगा ही, वो आपको प्राइवेसी की गारंटी देगा ही, ऐसे नहीं है। ठीक है, आपने सिक्योरिटी दी, इट डजेंट मीन दैट यू वॉट प्राइवेसी टू। जब आप एंटीवायरस आपके सिस्टम में डालते हो, यू आर गिविंग सिक्योरिटी टू योर सिस्टम, बट you are not giving privacy to your data. You are just protecting your systems from the bugs, from the viruses, but you are not giving privacy to the data, which personal information you have in your system. In exam, you may have question for how to differentiate between the security and privacy. तो सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। जहाँ पे हम लॉगिन करते हैं, हम जीमेल का लॉगिन करते हैं या कोई भी लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे हम पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं विद माई लॉगिन नेम। तो दैट लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज प्रोटेक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू माई अकाउंट। That protection can be said to be as a security. And privacy is what? Privacy is ability to protect the personally identifiable information. लॉगिन आईडी पासवर्ड मेरे पास अगर आ गया, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं लॉगिन कर सकती हूँ, अनऑथराइज एक्सेस कर सकती हूँ किसी के भी डेटा को। ठीक है, तो सिक्योरिटी मैंने ब्रेक कर दी, सिक्योरिटी ब्रेक हो गई। At the same time, you have lost your privacy. Whatever data is there inside your system that I can immediately access. तो सिक्योरिटी मतलब आपको बस अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्शन मिलता है। प्राइवेसी का मतलब है अनऑथराइज एक्सेस करने के बाद भी अगर आपके सिस्टम में जो कोई आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो हैक नहीं होनी चाहिए। दैट इज द प्राइवेसी। देन सेकेंड पॉइंट, security provide protection for all types of data and information, including the one that are stored electronically. जनरली हम सिक्योरिटी रिलेट करेंगे कंप्यूटर से ही, तो कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। एंड वट एवर डेटा एंड इंफॉर्मेशन यू हैव स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, टू सिक्योर दैट डेटा, टू प्रोटेक्ट दैट डेटा, सिक्योरिटी इज यूज्ड। And privacy is what? Privacy is just to protect the sensitive information of an individual or an organization. जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लीगल पेपर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स के सैलरी स्लिप्स होते हैं, उनके जो बॉन्ड्स होते हैं, उनकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, उसको प्रोटेक्ट करना इज़ द प्राइवेसी। और कंपनी का जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है, जो भी डे टू डे प्रोजेक्ट रिलेटेड, एप्लीकेशंस रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी डेटा होता है, उनको प्रोटेक्ट करना, दैट इज़ द सिक्योरिटी। Security program mostly focuses on all sort of information assets of organization. सिक्योरिटी आपके ऑर्गेनाइजेशन का पूरा जो इंफॉर्मेशन का असेट है, जो डेटा सेट है, जो कलेक्शन है, उसको फोकस करता है, उसको सिक्योर करता है। प्राइवेसी क्या करता है? पूरा डेटा प्रोटेक्ट करना इज नॉट प्राइवेसी। प्राइवेसी इज जस्ट to protect the personal information like your names, your addresses, your login credentials, your financial accounts. तो सिक्योरिटी में जो डेटा होता है, दैट इज बल्क डेटा टू विच यू आर काय प्रोटेक्टिंग। बट प्राइवेसी काय में डाउनलोड करतोय? स्मॉल डेटा होता है, पर्सनल डेटा होता है, वेरी सेंसिटिव एंड डेलिकेट डेटा होता है, जिसको आपने प्रोटेक्ट करना होता है। Security is given in the form of security protocols, and these security protocols gives you confidentially integrity and availability of information. तो जब भी हम एंटीवायरस चूज करते हैं, हम देखते हैं कि मुझे क्या क्या प्रोटेक्शन मिल रहा है इसमें। उसमें दिया होता है कि 3 इयर्स की इसकी वारंटी है, इसको आपने अपडेट कैसे करना है, ये आपको कौन कौन से वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है। जब भी आप इंटरनेट पे कोई एक्टिविटीज़ करते हो, तो उस इंटरनेट पे जब हम सर्फिंग कर रहे होते हैं, तो इंटरनेट से डाउनलोड करते टाइम जो वायरसेस आते हैं, उनसे भी वो एंटीवायरस से मुझे प्रोटेक्शन मिल रहा है या नहीं। इंटरनेट पे जब मैं बैंकिंग कर रही हूँ, नेट बैंकिंग कर रही हूँ, वहाँ पे मुझे प्रोटेक्शन मिल रहा है कि नहीं। ये सब हम एक एंटीवायरस परचेस करते टाइम देखते हैं। ठीक है,
तो जहाँ पे हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मिलती है, इंटीग्रिटी मिलती है, अवेलेबिलिटी मिलती है, वहाँ पे हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसे हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो सिक्योरिटी मेनली डील्स विद दिस थ्री थिंग्स. Security tries to give the customer more confidentiality, integrity, and availability. Whereas privacy is protection of privacy rights with the respect of processing of personal data. जैसे कोई बुक होता है, या कोई फिल्म होती है, या किसी चीज़ का एक ब्रांड होता है, ब्रांड का नेम होता है, अगर मैंने उसको कॉपी करने की कोशिश की तो इट विल बी लाइक अ लीगल, they can fire or they can give me the legal notice that this name or this activity or this video or this image, something has been already owned by someone. You cannot use it without their permission. जैसे हम पीपीटीज में या हम कोई पेपर बनाते हैं तो उस पेपर में हम किसी और की इमेज अगर पेस्ट कर दे तो वो मुझे प्लेगरिज्म में आता है कि दिस इमेज यू हैव बीन कॉपीड फ्रॉम समवेयर. तो वो क्या हो गया, यू आर एक्सेसिंग, यू आर यूजिंग देयर प्राइवेसी राइट्स. तो वो प्राइवेसी राइट्स को प्रोटेक्शन करना, दैट इज नथिंग बट द प्राइवेसी. तो सिक्योरिटी अगेन क्या होती है, सिक्योरिटी यू कैन नॉट अचीव विदाउट प्राइवेसी, बट प्राइवेसी कैन नॉट बी अचीव विदाउट सिक्योरिटी. तो ये सिक्योरिटी कैन बी अचीव विदाउट प्राइवेसी. आप सिक्योरिटी दे दी, प्राइवेसी है नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्राइवेसी देनी है तो सिक्योरिटी देनी ही पड़ेगी. So this is how the security and privacy has some points differ in them. They are not one and the same thing. They are different and they are different in these points. So whatever we have seen up till now, that is about the security. कि security क्या होता है, privacy क्या होता है, किन किन चीज़ों में security होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए. Now we are into our subject that what is information security. तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इन्फॉर्मेशन? यस स्टूडेंट्स, इन्फॉर्मेशन किसे बोल सकते हैं और हाउ टू डिफाइन इन्फॉर्मेशन? collection of data. एंड व्हाट इज डेटा? डेटा किसको बोलोगे फिर? name address or related to Usual facts Facts. or statistics. So any raw content you have with you, जैसे आपके पास मिस स्पेल्ड किया हुआ, या कोई एक्सेल फाइल का कंटेंट, कोई टेबल का कंटेंट, कोई वर्ड का कंटेंट, कोई एक्सएमएल फाइल, ऐसा सब कंटेंट आपके पास है पड़ा हुआ, तो उसको बोलते हैं हम रॉ. उसको बोलते हैं रॉ कंटेंट, दैट इज योर डेटा, जो प्रोसेस हुआ हुआ नहीं है. और वो डेटा को आप जब प्रोसेस करते हो कि ये टेबल की वैल्यूज दिख रही है, यहाँ पे नेम है, सीरियल नंबर है, then उसी नेम के रिलेटेड रोल नंबर है, डिपार्टमेंट है, एड्रेस है, उसको जब आप सॉर्ट करोगे, अच्छे से मेंटेन करोगे, तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन. तो इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा. डीबीएमएस में सीखा होगा ना आपने. Data is the raw content which you have with you, and that raw content which when get processed, that is called as the information. So as a computer engineer, what we need data or information? What we need? Information. We need information, and as we have information with us, and that information is very precious, so to give protection to that data, to that information, to give security to that, we are having this subject named as information security. Now this information security focuses on protection of information. तो हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं. कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? हम कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हैं, इंटीग्रिटी देते हैं, एंड अवेलेबिलिटी देते हैं. व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी? कॉन्फिडेंशियलिटी किसे बोलते हैं?
Prevent the data from unauthorized access. Okay, that is confidentiality. What integrity is? Maintenance of data. And Trust on availability? subject. To Availability avail किसे the बोलते data हैं? to the पर्टिकुलर डिवाइस पे particular अवेलेबल person. रहना. कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या होता है कि आपको अपना डेटा कॉन्फिडेंशियल रखना है। मतलब क्या हम सिस्टम लॉगिन करते हैं, ठीक है, या हम अभी मैं लेक्चर ले रही हूँ, तो मैं लेक्चर ले रही हूँ थ्रू द टी कंप्यूटर इंजीनियर आईडी, and you people are accessing from your own account. So, is it possible for you people to access my account and to log in from my account? It is not possible for you because this particular account is having separate ID and password. और जो स्टाफ में हमारे पास जो डेटा शेयर होता है वो सब डेटा यहाँ पे हमने स्टोर किया है। तो इस डेटा का जो आईडी और पासवर्ड है वो अलग से है। इट इज़ रादर डिफरेंट फ्रॉम योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो आपको एक्सेसिबल नहीं है। तो वो जो डेटा है वो क्या है, कॉन्फिडेंशियल है, वो प्राइवेट है कुछ ही लोगों के लिए। तो दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। आपके पास जो भी डेटा है उसको आपने प्राइवेसी देनी है, उसको आपने सेपरेट रखना है। आपको डिसाइड करना है कि ये डेटा आप कितने लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, कितने लोगों के पास आपने ये डेटा दिया है। जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन है, तो अ सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन ओनली हैव डेवलपर्स विद देम। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बस डेवलपर्स ही होते हैं क्या? बोलो। अभी आप सब जो कंपनी के लिए अप्लाई करने वाले हो, इंटरव्यू के लिए जाने वाले हो, तो वो कंपनी में बस डेवलपर ही होने वाले हैं क्या? हर एक आईटी कंपनी में बस डेवलपर्स ही होते हैं क्या? No, ma'am. No, ma'am. No. So, which are those different categories? Which type of people works in a software industry? Testing. वहाँ पे टेस्टर्स होते हैं, वहाँ पे डेवलपर्स होते हैं, वहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट होता है, वहाँ पे डिफरेंट Designers. डिज़ाइनर्स होते हैं, वहाँ पे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो बॉडी पे होते हैं। तो इन सब का एक अलग अलग टास्क होता है। इन सब का फ्लो पता है आपको कैसे होता है? अ, आपको ये पता है कि कंपनी को एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए जब मिलता है तो वो प्रोजेक्ट कैसे आता है कंपनी में, पता है आपको? उस पर्टिकुलर जॉब को क्या बोलते हैं? तो ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट आई एम टेलिंग दिस थिंग कि जब भी आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाते हो, आपका ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि कंपनी में बस डेवलपर ही होते हैं और मुझे डेवलपमेंट ही करना है। जब आप आपके कोडिंग में भी वीक हो तो भी आप सॉफ्टवेयर कंपनी में जा सकते हो, ठीक है। कैसे? अगर मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं आता तो मैं कैसे जा सकता हूँ वहाँ पे? तो आप जा सकते हो। क्यों? अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, अगर आपके पर्सनल स्किल्स अच्छे हैं तो भी आप सॉफ्टवेयर में जा सकते हो। कैसे जा सकते हो? तो कंपनी के पास जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्रोजेक्ट्स मतलब कोई क्लाइंट खुद से आके कंपनी में बात करता है कि मुझे ये सॉफ्टवेयर बना के चाहिए, मुझे ये एप्लीकेशन डिज़ाइन करके चाहिए। और कई बार क्या होता है, ये जो कस्टमर्स होते हैं, ये जो क्लाइंट्स होते हैं, ये जो वेंडर्स होते हैं, वो किसी साइट पे अपना रिक्वायरमेंट देते हैं। जैसे हम लिंक्डइन यूज़ करते हैं सब लोग, तो लिंक्डइन में बहुत सारी ऐसे रिक्वायरमेंट होती है कि आई वांट फ्रीलांसर फॉर दिस, आई वांट फ्रीलांसर फॉर दैट प्रोजेक्ट, आई वांट दिस टू बी इम्प्लीमेंटेड, आई वांट अ टीम ऑफ 5% फॉर दिस पर्पस। तो ये सब जो एड्स होती है, ये एड्स को ग्रैब करके कंपनी में लाने के लिए हमें एक पर्सन की ज़रूरत होती है एंड दैट पर्सन इज़ नथिंग बट बिजनेस एनालिस्ट। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, अगर आपके बार्गेनिंग स्किल्स अच्छे हैं, अगर आपके पर्सनल स्किल्स अच्छे हैं, देन यू आर सुटेबल फॉर दिस पोस्ट। तो बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है? वेंडर्स ढूंढता है, क्लाइंट्स ढूंढता है, प्रोजेक्ट्स ढूंढता है,
ठीक हाँ है। पढ़वाता और रहो ना। अभी ये जो प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट देने वाले जो पर्सन होते हैं, दे ऑल विल नेवर बिलोंग टू आईटी बैकग्राउंड। ओके। ज़बरदस्त स्लो चलते हैं बैंकिंग में नेटवर्क। हमारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, तो बैंकिंग में हर कोई आईटी वाला तो नहीं होता है। बस तो बैंकिंग बाबू। वालों की जो रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। जैसे यूनियन बैंक का हो गया, स्टेट बैंक का हो गया, इन सब के ऐप्स होते हैं। नेट बैंकिंग जब हम इनका करते हैं तो उनके नेट बैंकिंग की एक वेबसाइट होती है। तो ये वेबसाइट किसी सॉफ्टवेयर कंपनी ने ही डिज़ाइन की होगी ना, वो ऐप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी ने ही डिज़ाइन किए होंगे। तो ये सारे कस्टमर ढूंढने का काम जो आईटी इंडस्ट्री में करता है उसको बोलते हैं बिजनेस एनालिस्ट। तो बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है कि कंपनी में से एरंडोला एक भी एक बजट लेता है कि भाई माहीत नाही हमें पण आहे एक एकाकडे. प्रोजेक्ट चाहिए, तो किस मतलब कितना हम टर्नओवर कर सकते हैं, कितना जबरदस्त एकदम. रिवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं और कितना हम दोन इन्वेस्ट कर बुलेट सकते हैं। तर एकच तो हारली. बिजनेस एनालिस्ट को ये सब चीज़ें पता होती है, तो वो बाहर जाएगा, मार्केट में ढूंढेगा कि हमारे रिक्वायरमेंट, हमारा जो बजट है उसके खतरनाक आहे अकॉर्डिंग डायरेक्ट. हम कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो ते गुगल प्रोजेक्ट ड्राईव्हला लेता पिक्चर है। बी टाकून वो ठेवले. पिक्चर जो आहे ते थर्ड पुढचे. पार्टी है उनसे भी कांटेक्ट करता तू है येड कि आहे. तू इस ना ते बजट में सगळे हम फोल्डर आपको इतना हे टास्क लावून करके दिले दे असतील. सकते हैं। ठीक है, मग तो एवढं ये पूर्ण हो गया 14 GB चा बिजनेस डेटा एनालिस्ट। डाउनलोड अभी करतोय तू. बिजनेस एनालिस्ट आके क्या करेगा, 14 GB चा कुठे गेला. आपल्या याच्यावर वो कसं ना याच्या पहले याच्यात 2 उनके दिवस जो लागून जातील मैनेजर डाउनलोड होंगे होता होता. कंपनी में उनसे बात करेगा कि भाई ये नाही रिक्वायरमेंट रे. है, इतना बजट है, हम इतना मजबूत वेळ उससे लागेल रेवेन्यू त्याला. जनरेट एवढं कर सगळे सकते कशाला हैं, डाउनलोड तो करतोय क्या पण. हम इनसे फिर आता हे से पिक्चरांची कांटेक्ट गरज करें, नाही. फिर पिक्चर से डिलीट कोई करून दे मीटिंग इथून. करें या ना करें। अगर मैनेजर ने, मैनेजमेंट टीम ने हाँ अरे बोल दिया, फोल्डर आहे ना ते तब बंद वो करून ठेव. टास्क किसके पास आता है, डेवलपर के पास आता है। डेवलपर अभी क्या करते हैं, डेवलपर में भी कैटेगरी होती है, कोई बैकएंड वाले डेवलपर होते हैं, कोई फ्रंट एंड वाले डेवलपर फ्री अप होते हैं। स्पेस म्हणजे सम काय विच असतं आर माहिती देयर का. हू तुझे वर्क्स मोबाईलचे ऑन जेवढे एसक्यूएल फोटो याच्यावर डेटाबेसेस, चालले गेलेले ना गुगलवर पावर बीआई, तेवढे फोटो टैबल्यूज, मोबाईल जहाँ पे मधून डिलीट डेटाबेस होतात. मेंटेन होता है। और सम ऑफ द तू डेवलपर्स आर जी लाइक अपलोडिंग दोज आहे हू ना आर सगळ्या वर्किंग फोल्डरची फॉर अपलोडिंग कशाला हे डेवलपमेंट ऑफ केलेली आहे ग्राफिकल स्पेसिफिक यूजर फोल्डर इंटरफेस, कॅमेराचे म्हणा स्क्रीनशॉटचे जो म्हणा. मेन स्क्रीन डिज़ाइन करते हैं, जहाँ से हम डेटा इथेच एंटर कुठे करने झालं पाहिजे ना वाले हैं। फोल्डर वगैरे ठीक है, तो बाकीचे. डेवलपर के पास ये टास्क जाता है, वहाँ पे टास्क फिर हे डिवाइड नवीन होते हैं कि हे येऊन कौन सी गेलेले स्क्रीन्स त्याच्यामुळे लगने कळत नाही वाली है, लवकर. कौन सा डेटाबेस लगने वाला है, क्या क्या करना है। तो वो सब डेवलपमेंट टीम करती है। अभी डेवलपमेंट टीम में ये सब हो जाने के बाद ये पूरा जो यूनिट है वो किसके पास जाता है, वो डेवलप जो हो गया फोटो वो सेटिंग कुठून टेस्टर केलं के तर पास माझं. जाता है, जहाँ पे टेस्टर उन पे वैरायटी ऑफ टेस्ट केसेस अप्लाई करता है कि अगर मैंने रॉन्ग इनपुट याचं दिया जुनं वर्जन तो होतं ना ये तेव्हा कैसे चालायचं रिजल्ट व्यवस्थित होतं जनरेट रे. कर रहा है। वट एवर मला स्पेसिफिकेशन बी आर आलेलं गिवन अपडेट फॉर मी दैट करत पर्टिकुलर नाही. टास्क, वैसे ही ये परफॉर्म कर रहा है या इथं नहीं कर यायचं रहा की है। तुम्हाला कोणते कोणते ये फोल्डर टास्क होते अपलोड हैं करायचे टेस्टर असं. के। अभी टेस्टिंग हो जाने के बाद हे ना हम क्या पूर्ण करते हैं, हमारा जो मोबाईलमध्ये जेवढे प्रोडक्ट फोटो है आहे वो तेवढे एंड सगळे फोटो यूजर को व्हिडिओ डिलीवर करना त्याच्यावर है। जात आहे. मग ते काही कामाचं नाही ना तो इंटरनेट बी हमारे जातं. पास एंड यूजर मतलब दैट पार्टी, दैट कस्टमर इज नॉट द एंड यूजर। हम क्या करते हैं, किसी और को यूज करने के लिए देते हैं हमारा सॉफ्टवेयर कि भाई इस टाइटल के लिए हम ये डिजाइन कर रहा है, यू जस्ट चेक दैट वेदर इट इज फंक्शनिंग वेल और नॉट। और वो चेकअप हो जाने के बाद अगर उसमें कोई क्वेरी है तो फिर से हमें उनको पैचेस लगाने पड़ते हैं, फिर से काल तो झाला होता का डेवलपमेंट मग वालों को कुछ तो आज भी उसमें ते करना पड़ता है सो आंबडवाला होता दैट वी तो विल झाला होता का गेट अ तिथं मग प्रॉपर एंड वेल डिजाइंड कोणती प्रोजेक्ट। हां और वो हो जाने के बाद हम वो प्रोडक्ट हमारे कस्टमर को हां हैंड ओवर करते हैं। और कस्टमर को हैंड ओवर करने के बाद जब हमें उनको त्यांच्या इथं सिखाना का बा पड़ता है कि इसे कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, तो वहाँ पे राउटर का हमें काम आते हैं हमारे आपलं आयन सपोर्ट आयन इंजीनियर्स, यांचं यांनी आपण जे जो वापरतो ते बताते कोणतं हैं आहे कि आपको इसके लिए ये चीज़ें इंस्टॉल करनी होंगी, आपको केबलवाल्याचं ये का वाली मग विंडोज आयनवाला लगेगी, येतो ये आहे वाली मग ऑपरेटिंग एअरटेलवाला सिस्टम कसं काय नाही येऊ लगेगी, शकत आपको ये साला. वाला सिस्टम लगेगा जिसकी रैम इतनी चाहिए, जिसका आरामखोर हार्ड आहे. डिस्क इतना चाहिए। तो ये सब रोल्स होते हैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। और ये सब ते लोग एक जो एक एक नुसतं एका साथ काम कनेक्शनसाठी करते हैं, तो ऐसे इथपर्यंत नहीं आला है तो. कि बिजनेस एनालिस्ट के पास जो डेटा है वो डेटा हम सपोर्ट वाले टीम को भी देंगे। ठीक है, हमारे पास ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन कळलं. होती है जो हमें कुछ लोगों के साथ ही शेयर करनी है। तो जब हम उसको एक्सेस देते हैं, कुछ ही लोगों को एक्सेस देते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, कि सारा डेटा सब लोगों के पास नहीं होता है, उसको एक्सेस कुछ ही लोगों को अरे होता बाप. है। और वो जो एक्सेस होता है दैट इज नथिंग बट कॉन्फिडेंशियलिटी।
We are securing our information from few of the person which are there inside the company. It is not because we are afraid of them. We are feeling like they will grab our data and they will misuse our data. It एरंडोलचा is तो because मुकेश होणार आहे ना, it is not for their use. शिंपी वो सरचं घर अभी आहे कुछ त्याच्या काम बाजूला का एक नहीं जण है तो, तो उसके त्याने साथ शेयर पकडला होता करके अजगर, क्या करे. म्हणजे तो एवढाच होता. इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी. सचिन नाउ दादाच्या घरात व्हाट 2 वेळेस साप निघाला होता, कॉन्फिडेंशियलिटी इज. तेव्हा बी तोच आला होता पकडायला. अभी जैसे हम आप लोगों के टम्बर के जिवंत आहे का? मार्क्स एंटर करते हैं, तो वैसे भी वो आपको पता काहीतरी होने खाल्लं ही है वाटतं जब त्याने. आपका रिजल्ट डिस्प्ले होके आएगा. तो उसको हम क्या करते हैं, एवढं स्लोली कॉन्फिडेंशियल स्लोली रखते जातं. हैं. हे सो वेल दैट थिंग, पकड म्हणा, दैट याला म्हणा. फैसिलिटी इज कॉल्ड एज कॉन्फिडेंशियलिटी. समझ में आ रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी गोल क्या गोल है. गोल गोल हे करून दाबतो तो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन कम्स इंटीग्रिटी. तो अगर मैंने डेटा कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा तो मैं इंटीग्रिटी अचीव कर सकती हूँ क्या. No. इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि आपको आपका डेटा कंसिस्टेंट रखना है, प्योर रखना है, क्लीन रखना है. जैसे क्या होता पहिलं है भारी कि होतं रे आपके यार पास हे ऑप्शन, आपने अपने त्याच्यातनं जो डायरेक्ट हे राहायचे प्रेजेंटेशंस की दिए तुम्हाला तो वो कोणते अलग कोणते अपलोड करायचे, एक ने अलग फोल्डरचं अलग नाव यायचं आणि पुढे प्रेजेंटेशन ऑप्शन बनाए. राहायचं. अगर ऐसा होता कि आपको एक ही रिपोर्ट बनाना था, चारों मिलके एक ही रिपोर्ट बनाना बनाना था, चारों मिलके एक ही पीपीटी डिजाइन करने थे, तो क्या होता था, अगर मुझे लगा मुझे फर्स्ट स्लाइड में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो मैंने कर दी. किसी और को लगा कि नहीं यार ये फॉर्मेट गलत है, मुझे दूसरा फॉर्मेट यूज करना चाहिए, तो उसने उसके हिसाब से चेंजेस कर लिए. और एट द टाइम ऑफ योर लास्ट डे व्हेन यू आर गिविंग प्रेजेंटेशन एंड योर गाइड इज आस्किंग यू दिस वाज नॉट द फॉर्मेट, हां, then what you ह्याच्यात आहे will रे ते do, ऑप्शन. you पहिले will ते look ऑप्शन at चालू कर, all other ते 3D ऑप्शन चालू कर, members त्याच्या who खाली are there शेवटचं in ऑप्शन your येईल. team. हे ऑप्शन चालू कि कर, मैंने तो सही किया था, अब ये किसने त्याच्यात चेंज किया. फोल्डरचं ऑप्शन येईल. तो क्या हो गई, आपका जो डेटा है उसकी इंटीग्रिटी लॉस हो गई. समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ. हां, टर्न ऑन Yes, ma'am. बॅकअप. अगर ब्लू आपने लाईनवर हां, कॉन्फिडेंशियलिटी लूज करके खाली आहे आपने ना, एक आपका मिनिट थांब, सारा चल डेटा ठीक आहे. सबके साथ शेयर कर बॅकअप दिया, सेटिंग तो कोई ओके. भी उसमें कुछ भी फोल्डर आहे का चेंजेस इथे, करते बॅकअप जाएगा. डिवाइस और फोल्डर. वो हां, चेंजेस होने खाली के खाली. वजह से क्या होगा, आपके हां, डेटा में हे कुछ पाय. अच्छी चीजें मग आएंगी, तेच ना, फक्त बट इथून जे आपकी सिलेक्टेड आहे ना, जो म्हणजे पाय आपल्याला डेटा में जो कॅमेरे लागतात, इम्पोर्टेंट स्क्रीनशॉट थिंग्स लागले है तर वो भी लागले, कभी कभी व्हॉट्सअपचे लॉस काही हो हे सकते राहिले हैं. तेवढे. तो इंटीग्रिटी मतलब क्या है कि आपने अपना डेटा कंसिस्टेंट रखना है, प्योर मी बी रखना कधींचा है बॅकअप और घेतला आणि मग क्लीन बी रखना है. 1.5-2 जीबीचा और ये बॅकअप होऊन जाईल. तभी पॉसिबल मग होगा त्याच्यात काय जब होतं माहिती आपने आहे का, आपके डेटा को विनाकारणचे फोटो बी चालले जातात. कॉन्फिडेंशियलिटी दी है. जिस पे आपको भरोसा है, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, उसके साथ ही अगर आपने डेटा शेयर किया तभी आपका डेटा इंटीग्रेट रहेगा, नहीं तो वो इंटीग्रिटी नहीं रहेगी उसकी. दैट इज द सेकेंड थिंग. एंड नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी. अभी अवेलेबिलिटी क्या है, दिस इज ऑल्सो देयर लाइक द एक्सेस राइट्स. ठीक है. कोई भी फाइल्स होता है लॅपटॉपला हमारे पास, रिकामा केलं का तू, उसके डेस्कटॉप बी पाय किती तीन ये भरलेले होते होते हैं, ते. आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, रीड राइट दोनों एक साथ कर सकते हो. ठीक है. तो ये जो चीज़ें है, दैट इज अवेलेबिलिटी. आपको आपका डेटा किसको अवेलेबल करके देना है, किसको ऑथोराइज करके देना है, किसको एक्सेस करके देना है, एक्सेस राइट आपको किस किस को देने हैं, दैट इज नथिंग बट द अवेलेबिलिटी. When you will able to manage all these three things, CIA इसको बोलते हैं CIA ट्रायल. ये तीन वैल्यूज है. अगर ये तीन वैल्यूज अगर आपने अच्छे से मैनेज की तो आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अचीव कर सकते हो. आप आपका डेटा सिक्योर रख सकते हो. Okay, so protection of your information using the confidentiality, integrity, and availability, which also includes variety of protection mechanisms like policy, training, awareness program, and technology, is nothing but the information security. अभी ये जो चीज़ें है कि कॉन्फिडेंशियलिटी देना है, इंटीग्रिटी देना है, अवेलेबिलिटी देना है, ये सब तो हो गया. दिस आर द जनरल थिंग्स. बट इसके साथ जिसको आपने इंफॉर्मेशन तो सिक्योरिटी जो देनी एरंडोला है लॅपटॉप दिलेला उसको होता, और भी प्रोटेक्शन तो कुठून आणलेला मैकेनिज्म्स होता, पता होने चाहिए. लाइक विच आर द रिसेंट तिकडून आणला होता का. टेक्नोलॉजीज यूजिंग आणि विच हा यू कैन गिव द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. जैसे पहले हम मग क्या विकत करते कोणता थे आणलाय तू. कि पासवर्ड देते थे. तो इन वेरी पास्ट ईयर्स जब ये इन्वेंट हुआ हो था बरं. कि हम पासवर्ड देके हमारा डेटा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या था कि हम नंबर वाला ही बस पासवर्ड दे सकते थे, लेकिन नंबर मी वाला जाईल रे. पासवर्ड गेस करना बहुत इजी था.
तो उसके बाद उन्होंने क्या इन्वेंट किया कि हमने मिक्स करना है, कैरेक्टर सिंबल्स भी डालने हैं इसमें, सो दैट इट विल बी मोर डिफिकल्ट व्हिडिओला टू बोके आहे का आइडेंटिफाई तुझ्या द याच्यामध्ये? पासवर्ड. ये हो गया वन वे. बट बॅक फिर कॅमेराला भी एनी वन इफ इट इज ट्राइंग द ब्रूट लाव ना, फोर्स ही अटैक, खुर्चीला घे ना. अगर उन्होंने बहुत सारे खुर्ची ठेव, कॉम्बिनेशन खुर्चीला हे ट्राई कर. किए तो कुछ चीज़ों में ये हो जाता था कि पासवर्ड हैक हो जाता था. आणि तो तो ये जो होगी पुरानी विवोचा होता त्याला टेक्नोलॉजी जहाँ पे त्याला नव्हतं हम वाटतं एक ना? पासवर्ड सेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, सिंबल्स एंड मेरी कैरेक्टर्स. अभी नजर रिसेंट शर्फी टेक्नोलॉजी क्या है, हम है हमारे रेटिना के थ्रू वो. हमारा अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं. हम हमारे थंब इम्प्रेशन के थ्रू हमारा मोबाइल अनलॉक कर सकते हैं. ठीक है, सेम हम नेट बैंकिंग में, हम मोबाइल बैंकिंग में मोबाइल चालू करने के लिए, व्हाट्सएप के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, सब एप्लीकेशंस के लिए हम ऐसे कर सकते हैं. सो whenever you are using information security, you should be aware of the recent technology which are there in providing information security, कि ये भी सब चीज़ें हैं उसमें. आपको पॉलिसीज पता होनी चाहिए. सिक्योरिटी इज अ इंटरनेशनल लेवल थिंग, इट इज अ नेशनल लेवल थिंग्स, and that's why government has been defined some policies, some access rights, some legal activities, that how the security should be provided to a user. ठीक है, उसी में हम सिक्योरिटी दे सकते हैं. जैसे बैंक का जो सर्वर है, बैंक का जो डेटा है, उसको आप कितना भी ट्राई करो एक्सेस करने के लिए, हैक करने के लिए, लेकिन वो नहीं होता, क्योंकि दैट काइंड ऑफ पॉलिसीज आर यूज, दैट काइंड ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आर यूज फॉर saving and protecting that bank account data, and these are different at different level. और जहाँ पे essential है वहाँ पे high security होती है ऐसे. तो आपको सब पॉलिसीज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए. तो गवर्नमेंट हैज़ डिज़ाइंड वन कमिटी बाय द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम, CNSS बोलते हैं इसको, कमिटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम. तो नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम की जो कमिटी है, उन्होंने एक सिक्योरिटी मॉडल डिज़ाइन किया है. तो इन अकॉर्डिंग टू दैट सिक्योरिटी मॉडल, आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करते टाइम आपने कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, बस यही नहीं देखना है, आपने ये 3 पिलर्स भी देखने हैं कि आप नेटवर्क सिक्योरिटी दे रहे हो क्या, डेटा सिक्योर कर रहे हो क्या, कंप्यूटर सिक्योर कर रहे हो क्या, आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी दे रहे हो क्या, आप गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो कर रहे हो क्या, आप मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पॉलिसीज यूज़ कर रहे हो क्या. ये सब अगर आप फॉलो करके किसी चीज़ को सिक्योरिटी दे रहे हो, then that is the proper information security you are providing to someone or to some agency. Now, why there is need for security? What is the foundation of security? अभी क्या होता था, पहले जो कंपनीज होती थी, तो कंपनीज क्या करती थी, कंपनीज सिक्योरिंग देयर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बाय लॉकिंग द फाइल कैबिनेट्स and installing password firewalls around the database and systems in office-based computer. जहाँ पे उनका हार्ड कॉपी वाला डेटा होता था, उनके फाइल्स होते थे, नोटबुक्स होते थे, पेपर्स होते थे, उनको वो क्या करते थे, लॉक करते थे. दे आर लॉकिंग देयर फाइल कैबिनेट्स. जहाँ पे उनका सॉफ्टवेयर वाला डेटा होता था, सॉफ्ट डेटा होता था, वहाँ पे वो पासवर्ड्स देते थे. जहाँ पे उनके डेटाबेस होते थे, वहाँ पे वो फायरवॉल इंस्टॉल करते थे. तो ये सारी चीज़ें यूज़ करके, लॉक्स यूज़ करके, पासवर्ड्स यूज़ करके, फायरवॉल यूज़ करके पहले कंपनी उनका डेटा सिक्योर करते थे. बट वहाँ पे वैसे डेटा सिक्योर क्यों होता था, क्योंकि जब पिछले लास्ट फ्यू ईयर की जब हम कंपनीज की बात करेंगे, तो कंपनीज वेयर लाइक इन द नासिक सिटी ओनली. दे आर हैविंग ब्रांचेस एट सम अदर लोकेशन. तो नासिक वाले ब्रांच को मैं क्या कर सकती हूँ, पासवर्ड दे सकती हूँ सिस्टम को, वहाँ पे फायरवॉल डाल सकती हूँ, फाइल कैबिनेट को लॉक कर सकती हूँ. तो ऐसे दूसरी किसी ब्रांचेस में होंगे, वहाँ पे भी मैं से कर सकती हूँ. लेकिन अभी क्या हो गया है, ड्यू टू करंट एनवायरनमेंट एंड ड्यू टू द हेल्थ सिचुएशन एंड कोरोना सिचुएशन, वी आर नॉट वर्किंग फ्रॉम कंपनी, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम.
and we are storing companies data स्टेटमेंट तेच anywhere म्हणतोय in ना any थोडासा system. इको वगैरे जर अगर राहिला मैं तरी मेरे कॉल खुद के घर सरळ से येतो. काम कर रही हूँ तो मैं वहाँ पे कसलं कुछ बोर डेटा होतं डाउनलोड करके स्टेटमेंट प्रोसेस करके वो साइट पे अपलोड स्टेडी करूँगी. स्टेडी अगर अच्छा मैं हां ते मेरे किसी रिलेटिव के यहाँ हूँ तो मैं वहाँ का स्टेबिलायझेशन उनका सिस्टम यूज़ करके मैं मेरा डेटा प्रोसेस करूँगी और वो कंपनी का जो काम है वो मैं करके दूँगी. तो इससे क्या होता है, समवेयर वी आर misusing the company's data, and somewhere we are touching the data of company in insecure way. तो ये जो है ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए, इसलिए सिक्योरिटी देना is the important task, because टाक ना nowadays व्हिडिओ there टाक is माझ्या no फोनचा specific स्पीकर मोड perimeter to कसं ठेवू company कि इतने premises में ही मेरी कंपनी है और इसको सिक्योरिटी देनी है, ऐसे नहीं है. Nowadays there is no perimeter to company जिसको हम गार्ड कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और जिसमें हमें तीन चीज़ें मेनली ध्यान में रखनी पड़ती है, दैट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया एंड अवेलेबिलिटी हो गया. तो ये तीन चीज़ें मैंने आपको अभी बताई कि कॉन्फिडेंशियली क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, अवेलेबिलिटी क्या होता है. देन कम्स OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर. आपने OSI मॉडल पढ़ा है CN में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so how many layers were there in that OSI model? 7. 7 layers are there, and each layer is having a particular functionality. That was OSI network model, जिसमें 7 लेयर स्टैक किए हुए हैं एक के ऊपर एक, एंड हर एक लेयर का एक फंक्शनैलिटी है. If those all 7 layers will perform well on server side as well as on the client side, then you are able to successfully transmit and receive your data from one end to another end. In same way, the security also have a OSI architecture where few layers are given, and at each level some protocols has been designed to provide the security. If all these protocols of security at every layer are performed well their task, then it is very easy for us to transmit and send data from server or to server, from receiver or to receiver, very easily, very safely, with security, without any interruption from third party. Okay, so the OSI security model is one point which we have to see, and this OSI security model we'll learn in next lecture. For today, we'll stop here. Will it be fine? At 3 o'clock, we will start our Python session. Okay, ma'am. And give me the Okay, attendance. ma'am. Roll number 1, roll number 2, Present, ma'am. roll number 3, 4, Present, ma'am. 5, Present, ma'am. 6, 7, Present, ma'am. 8, 9, Present, ma'am. 10, 11, Present, ma'am. 12, 13. Present, ma'am. 12 is present. Yes. Okay, 13, 14, Present, ma'am. 19,